Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you poem Why English is so hard from subject English. We'll begin with a box and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of house is houses, not highs. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pen be called pen? And I speak of a foot and you show me your feet, but I give you a boot, would a pair be called beat? That one may be that and three may be those, yet the plural of hat would never be hose. The masculine pronouns are he, his, and him, but imagine the feminine she, she's, and shim. So, our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. In the title itself, the poet asks why English is such a difficult language. पोइट यहाँ पे खुद पूछ रहा है इस टाइटल में कि इंग्लिश इतना डिफ़िकल्ट है क्यों है. We'll begin with the box and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. He says that if the plural of box is boxes, then why is the plural of ox not oxes but oxen? जैसे बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस होता है तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म ऑक्सेन होता है, ऑक्सेस नहीं. इट इज़ अ पोएम अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एंड अबाउट प्रोनाउन. जैसे ऑक्स सिंगुलर फॉर्म बॉक्स सिंगुलर फॉर्म है तो उसका प्लूरल फॉर्म है बॉक्सेस. ऑक्स सिंगुलर है तो उसका प्लूरल फॉर्म है ऑक्सेन. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of a house is houses, not highs. When a mouse is single, it is called a mouse, but when there are many, they are called mice. Then why is the plural of house not highs but houses? अगर एक चूहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, माउस, और एक से ज़्यादा हो गए तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, माइस, MICE माइस. लेकिन हाउस का प्लूरल फॉर्म होता है हाउसेस, HOUSES, ना कि HICE हाइस. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pen be called pen? The poet gives many other examples like the plural of man is always men, but why is the plural of pen not pen? यहाँ पे MAN ये है हमारा सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म होता है MEN. पोएट कह रहा है अगर मैन का प्लूरल फॉर्म MEN मैन है तो पेन, जो पेन है फ्राई पेन होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म पेन, PEN क्यों नहीं, PAN पेन. ये जो वो पेन होता है देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ कुक अपने हाथ में लिए खड़े हैं, ये है पेन जिसे हम फ्राई पेन कहते हैं, तो उसका प्लूरल फॉर्म होगा PANS, pens. And I speak of a foot and you show me your feet, but I give you a boot, would a pair be called beat? When the plural of foot is feet, why then is a pair of boots not called beat? जैसे वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे एक पैर के बारे में पूछता हूँ तो तुम मुझे अपने दोनों पैर बताते हो. देखिए यहाँ पे FOOT फुट मतलब एक पैर होता है और FEET फीट दोनों पैर के लिए कहा जाता है. तो
अगर मैं फुट, FOOT फुट, ये एक पैर के लिए है और FEET फीट हमारे दोनों पैर के लिए है। तो जब मैं तुम्हें 1 फुट के बारे में पूछता हूँ या कहता हूँ तो तुम मुझे अपने दोनों पैर दिखाते हो। बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पैर बी कॉल्ड बीट? अगर मैं तुम्हें बूट देता हूँ तो क्या तुम इन दोनों पैर, यहाँ पे PAIR मीन्स जोड़ी, ओके। तो अगर मैं तुम्हें बूट की जोड़ी दोनों देता हूँ तो क्या तुम इसे बीट कहोगे? नहीं। BOOT बूट का प्लूरल फॉर्म होगा BOOTS, बूट्स। Then 1 may be that and 3 may be those, yet the plural of hat would never be whose. That मीन्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमारे सामने है और हमसे दूर है। तो that 1 may be that, अगर कोई हमारे सामने दूर खड़ा है तो हम उसे कहते हैं that, ओके। और अगर वहाँ पे वो एक से ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं those। तो अगर कोई एक खड़ा है तो हम उसे that कहते हैं, और अगर 3 है तो हम उसे those कहते हैं। तो उसी तरह जो hat का प्लूरल है वो whose नहीं है। ऐसे क्यों? तो जो THAT that का प्लूरल है THOSE those। तो उसी तरह hat का जो प्लूरल फॉर्म होगा HATS, hats होगा, ना कि HOSE hose। The masculine pronouns are he, his and him, but imagine the feminine she, she's and shim. Poet says the masculine pronouns are he, his and him, but imagine if the feminine were she, she's and shim. Masculine means जो हम लड़कों के लिए यूज़ करते हैं वो, उसे कहा जाता है मस्कुलिन, मतलब किसी मेल पर्सन के लिए। प्रोनाउन मीन्स जो हम नाम की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे विकी इज़ क्लेवर बॉय, विकी, तो हम ऐसे विकी की जगह हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ क्लेवर बॉय। हमने विकी की जगह क्या यूज़ किया? ही। तो उसी तरह मस्कुलिन में जो प्रोनाउन होते हैं वो लड़के के लिए ही, हिज एंड हिम यूज़ होता है। बट इमेजिन फेमिनिन के लिए मीन्स लड़की के नाम के लिए या लड़की के लिए जो यूज़ होता है उसे फेमिनिन कहते हैं। तो उसके लिए शी, शीज़ एंड शिम नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए होता है शी, हर एंड हर्स। So our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. After giving all these examples, the poet concludes by saying that everyone will agree that English is the trickiest language, means difficult language that one has एवर कम अक्रॉस, के मीन्स आप सब इस बात से एग्री करते हो कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज है। होप यू अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।